Welcome to one and all present here. Myself Shoaib Rashid, and today I am delighted to present here a topic on body movements and skeletal system, as this topic plays a crucial role in understanding how our body functions and the different activities or movements we make. Skeletal system not only provides support to our body, but it also protects our vital organs like spinal cord, brain, heart, lungs, etc. The ability to move is one of the basic characteristics of living organisms, and in humans it's made possible by the coordination of skeletal system, muscles and joints. Through this presentation, we will explore introduction to body movements, skeletal system and the different parts of the skeletal system. So let's begin our journey into the fascinating world of skeletal system and body movements. First of all, we should know that what's movement. Change in position of any object is called movement. Many movements take place in our body and also in other organisms' body. जब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है उसी को हम मूवमेंट कहते हैं. लाइक अ मूविंग कार, एक कार एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसकी पोजीशन चेंज होती है, इसी को हम मूवमेंट कहते हैं. हमारी बॉडी में भी बहुत सारे मूवमेंट्स पेश आते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की भी बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट्स पेश आते हैं, लाइक द मूवमेंट ऑफ लेग्स, आर्म्स, हेड एक्सेट्रा. When movement results in change of whole position of an organism, it's called locomotion, and this involves moving from one direction to another direction. जब एक ऑर्गेनिज्म की पूरी पोजीशन चेंज होती है उसको हम लोकोमोशन कहते हैं. एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो जो उसकी पोजीशन है वो पूरी चेंज होती है, इसको हम लोकोमोशन कहते हैं. Now you tell me that what's movement? Change in position of any object is called movement. What's locomotion? When the movement results in the Now, so that we are thinking about movement, let's take a closer look to why two living organisms move. Plants move from one place to another place, and organisms move from one place to another place in search of food, shelter and their mates. जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ताकि वो अपना फूड, शेल्टर और अपने कंपेनियन सर्च कर सके. मूवमेंट इज वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो मूवमेंट है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से डिफरेंशिएट करता है. Plants also show movement which is not visible, so they do not move from their place. Their root and shoot system shows movement. जो प्लांट्स है वो भी मूवमेंट्स दिखाते हैं, लेकिन जो उनका मूवमेंट होता है वो इनविजिबल होता है, यानी वो हमें दिखाई नहीं देता है. जो प्लांट्स है वो अपनी जगह से मूव नहीं करते, बल्कि जो उनका रूट और शूट सिस्टम होता है वही मूवमेंट्स दिखाते हैं. Now here is a question that how does the root and shoot system of a plant shows movement? The root and shoot system of a plant shows movement through tropisms whose directional growth responds to the environmental stimuli. जो प्लांट्स के रूट्स और शूट सिस्टम होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स के जड़ और तन्ने होते हैं, वो ट्रॉपिज्म्स के जरिए मूवमेंट जाहिर करते हैं. हमें पहले पता होना चाहिए कि ट्रॉपिज्म क्या होता है. द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इज नोन एज ट्रॉपिज्म. नाउ यू टेल मी दैट व्हाट्स ट्रॉपिज्म. The movement of plants is called tropism. Roots grow away from light to remain underground, and they also grow against the gravity to anchor the plant and to absorb water and minerals from soil. जो एक प्लांट के रूट्स होते हैं, यानी जो प्लांट का रूट सिस्टम होता है वो लाइट के नज़दीक ग्रो नहीं करते, बल्कि वो लाइट से दूर ग्रो करते हैं ताकि वो ज़मीन के अंदर ही रहे, और वो प्लांट को इस काबिल बनाता है ताकि जो प्लांट है वो सॉइल से मिनरल्स और वाटर ऑब्जर्व करे. Shoots grow towards the light to maximize photosynthesis, and they also grow against the gravity to reach the sunlight. जो एक प्लांट का शूट सिस्टम होता है वो लाइट के नज़दीक ग्रो करता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके, और वो ग्रेविटी के नज़दीक भी ग्रो करता है ताकि जो प्लांट्स के शूट्स है वो सनलाइट तक रीच कर सके. Now you tell me what's the movement of plants called? Animals move from one place to another place in search of food, shelter and mates. जो एनिमल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ताकि वो अपना फूड, शेल्टर और अपने मेट सर्च कर सके, यानी कि अपनी कंपेनियन सर्च कर सके. The way of movement is different in different animals, like frogs, hops, snakes, squirrel, and some of the animals move on their 2 or 4 legs.
जो मूवमेंट होता है डिफरेंट एनिमल्स में वो डिफरेंट होता है, यानी कि जो सारे एनिमल्स हैं वो सेम मूवमेंट्स नहीं दिखाते हैं। कुछ एनिमल्स अपनी 2 या 4 लेग्स पे मूव करते हैं, कुछ एनिमल्स ज़मीन पे रेंगते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि फ्लाई करते हैं। We humans move all the time for entertainment, studying and working. In human body, the skeletal system, the muscular system and the nervous system coordinate the body for movement. जो ह्यूमंस है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वर्किंग के लिए और स्टडिंग के लिए। ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है और नर्वस सिस्टम होता है, वो हमें मदद देते हैं मूवमेंट के लिए। नाउ आई विल टेल यू अबाउट स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम गिव्स स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट आवर बॉडी। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। When skeletal system work together with muscles, they allow us to move all the different parts of our body. जब हमारा skeletal system हमारी muscles के साथ काम करते हैं तो ये हमें हमारे different body parts move करने में मदद देता है। The skeletal system comprises of skull, rib cage, backbone, cartilage, bones, ligaments, etc. जो skeletal system है उसमें cartilage, ligaments, bones, joints वगैरह present होते हैं। Now I will tell you about skeleton. Skeleton क्या होता है? Skeleton क्या होता है? The framework of bones and cartilage is called skeleton. ये skeleton ऐसा framework होता है bones और cartilage का जो कि हमारी body के structure को support करता है और हमारी body को shape देता है। Now I will tell you what are bones. Bones are the hard structures made up of minerals, especially phosphorus and calcium. बोन्स हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लिविंग सेल्स से बने होते हैं और मिनरल्स से बने होते हैं। ये स्पेशली कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। There are 206 bones in an adult human skeleton and in babies there are 300 bones. एक adult human skeleton में 206 bones होती है और जो चिल्ड्रन है उनमें 300 bones होती है। जब फिर ये चिल्ड्रन डेवलप होते हैं, जब ये ग्रोथ करते हैं तो जो उनकी छोटी छोटी बोन्स होती है वो आपस में मिलकर बड़ी बोन्स बनाती है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन? व्हाट स्केलेटन? Now I will tell you about ligaments. Ligaments are the strong tissues that hold bones together at joints. Ligaments ऐसे strong tissues होते हैं जो कि हमारी body को joints पे held करते हैं, यानी कि ये joints को, ये bones को हिलने नहीं देते। ये thread like structures होते हैं जो कि bones को आपस में join करते हैं, joints hold करते हैं joints पे। Now you tell me that what are ligaments? Strong tissues that hold bones together at joints. Now I will tell you about cartilage. Cartilages are the soft and elastic. These are present on in our earlobe, nose tip and the rings of backbone, throat and ribs. जो ये कार्टिलेज होता है ये सॉफ्ट और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो कि हमारी बोन्स जॉइंट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी कि बोन्स के दरमियान प्रेजेंट होता है और ये बोन्स को रबिंग से प्रिवेंट करते हैं। ये हमारी ईयरलोब, नोज टिप और जो हमारी बैकबोन के रिंग्स है उनमें भी प्रेजेंट होता है, हमारे थ्रोट में भी प्रेजेंट होता है और जो हमारा रिबकेज है उसमें भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। जो ये कार्टिलेज है ये बहुत हार्ड नहीं होते हैं बल्कि इनको हम बेंड कर सकते हैं, बल्कि इनको हम तोड़ सकते हैं। Now I will tell you the parts of the skeletal system. जो हमारा skeletal system है ये दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है axial skeleton and appendicular skeleton. जो axial skeleton है उसमें skull, vertebral column, ribs और sternum आता है और जो appendicular skeleton है उसमें limbs और girdles आती है। जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें टोटल 126 बोन्स आती है, जो लिम्स 120 बोन्स होते हैं और गर्डल्स में 6 बोन्स होते हैं। फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट स्कल। ये स्कल क्या होता है? ये स्कल एक बॉक्स होता है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और स्कल के 2 पार्ट्स होते हैं, क्रेनियम और फेशियल बोन्स। जो क्रेनियम है ये एक बोनी बॉक्स होता है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इसमें 8 बोन्स प्रेजेंट होती है। नाउ यू टेल मी दैट हाउ मेनी बोन्स आर देयर प्रेजेंट इन क्रेनियम? Cranium bones are also called cranial bones. Now I will tell you about facial bones. Facial bones क्या होती है?
फेशियल बोन्स हमारे स्कल में 14 होते हैं, और जो ये फेशियल बोन्स है ये लोअर जा, अपर जा और कुछ बोन्स का बना होता है। यानी कि जो फेशियल बोन्स है लोअर जा हमारा अपर जा और कुछ बोन्स प्रेजेंट होती है फेशियल बोन्स में, और जो हमारा लोअर जा है वो सिर्फ मूवेबल है। जो कि हमारा लोअर जा है यही सिर्फ मूवेबल है, जो बाकी जॉइंट्स है, जो बाकी बोन्स है वो इमूवेबल जॉइंट्स से जुड़े होते हैं। Now you tell me that are the facial bones all fixed or there is any movable joint? And the movement of this jaw enables us to eat, speak, talk, etc. जो हमारा ये लोअर जा है ये हमें खाने बात करने में मदद देता है। जो हमारा लोअर जा है यानी कि जो ये है ये वाला हिस्सा हमारी फेशियल बोन्स का, ये हमें बात करने में मदद देता है और हमें खाने में भी मदद देता है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट वर्टेब्रल कॉलम। जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है ये स्कल के बेस से स्टार्ट होता है, यानी कि ये स्कल का बेस है, ये वहाँ से शुरू होता है हमारी हिप तक। जो हमारा हिप है वहाँ पर वर्टेब्रल कॉलम ख़त्म होता है, यहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम ख़त्म होता है। और जो वर्टेब्रल कॉलम है वो 33 स्मॉल बोन्स का बना होता है जिनको हम वर्टेब्रास कहते हैं। नाउ यू टेल मी हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन वर्टेब्रल कॉलम। जो ये रिंग्स है हमारी बैकबोन में, जो रिंग्स प्रेजेंट होते हैं इन्हीं को हम वर्टेब्रास कहते हैं। और जो ये वर्टेब्रास है ये एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वर्टेब्रास एक दूसरे के ऊपर है और ये एक हॉलो बोनी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड इसके दरमियान पास होता है। नाउ यू टेल मी विच बोनी स्केलेटन प्रोटेक्ट्स आवर स्पाइनल कॉर्ड। Backbone protects our spinal cord. Now I will tell you about rib cage. The chest bones form a cage-like structure which is called rib cage. जो हमारी chest bones होती है, जो हमारी ये chest bones है, ये cage-like structure बनाती है जिसको हम rib cage कहते हैं। और इस rib cage में 12 pairs of ribs present होते हैं। ये जो ribs है ये backbone से निकल कर हमारी 10 pairs of ribs हमारी chest bone से जुड़े होते हैं। जो हमारी ब्रेस्ट बोन है इससे ये रिब्स जुड़े होते हैं, लेकिन 2 पेयर्स ऑफ रिब्स ऐसे होते हैं जो कि फ्री होते हैं, वो फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं, वो बैकबोन से कनेक्टेड होते हैं लेकिन ब्रेस्ट बोन से वो कनेक्टेड नहीं होते, उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। नाउ यू टेल मी दैट व्हाट आर फ्लोटिंग रिब्स। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द पार्ट्स ऑफ द एपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें सबसे पहले लिम्स आती है और लिम्स में 120 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्स आर द प्रेहेंसाइल अपेंडेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड दीज आर ऑफ 2 पार्ट्स, फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स। लिम्स में एक हमारी फोर लिम्स आती है और हमारी लोअर लिम्स या हैंड लिम्स आती है। Now first of all I will tell you about forelimbs. The forelimb consists of upper arm, lower arm, wrist, hand and fingers. जो हमारी forelimb है उसमें हमारी upper arm, lower arm, हमारे wrist, hand और fingers आते हैं। और जो हमारी अपर आर्म है उसमें एक लॉन्ग बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं, और जो हमारी लोअर आर्म है उसमें 2 बोन्स प्रेजेंट होती है जिसको हम रेडियस और उल्ना कहते हैं। और जो हमारा रिस्ट है वो कई बोन से बना होता है जिनको हम कार्पल्स बोलते हैं। हमारे हैंड में 5 बोन्स प्रेजेंट होती है जिनको हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं। और जो हमारी फिंगर्स है सारी फिंगर्स 3 बोन्स के बने होते हैं जिनको हम फेलेंस कहते हैं। नाउ यू टेल मी हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर लोअर आर्म। नेम द बोन्स ऑफ द लोअर आर्म। How many bones are present in our hand and name these bones? There are 5 bones in our hand. These are present. Now I will tell you about hand limbs. Hand limbs, the hand limb consists of upper leg, lower leg, ankle, foot and toes. जो हमारी hand limb है उसमें हमारी upper leg, lower leg, ankle, foot और toes आते हैं। जो हमारी अपर लेग है उसमें एक लॉन्ग बोन है जिसको हम फेमर या थाई बोन कहते हैं। और जो ये बोन है हमारी बॉडी में ये सबसे लंबी बोन है हमारी बॉडी में एंड इट बियर्स मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट। जो हमारी लोअर लेग है उसमें 2 बोन्स आती है, तिबिया और फिब्यूला। और जो हमारा एंकल है उसमें कई बोन्स आती है जिनको हम टार्सल्स कहते हैं। जो हमारा फुट है वो 5 बोन्स का बना होता है जिनको हम मेटाटार्सल्स बोलते हैं। और जो हमारे टो बोन्स है
उनको हम phalanx कहते हैं। एंड द toe bones help us in running and walking। जो हमारी toe bones है वो हमें दौड़ने में मदद देते हैं और चलने में भी मदद देते हैं। Now you tell me how many bones are there in our upper leg? Which is the longest bone in our body? Now I will tell you about girdles. Girdles are the places where the limbs are attached to our body. Girdles ऐसे places होते हैं जहाँ पे limbs हमारी body से attached होते हैं। Like यहाँ पे हमारा girdle present होता है, limbs attached है हमारी body से, यहाँ पे भी हमारा girdle present है और यहाँ पे भी हमारा girdle present है क्योंकि वहाँ 4 limbs connected है हमारी body के साथ। There are 3 great bones on the upper side of our body, which is called pectoral girdle. हमारी बॉडी में 3 ग्रेट बोन्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी अपर साइड बॉडी में 3 ग्रेट बोन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं। और जो हमारे लोअर बॉडी है उसमें भी 3 ग्रेट बोन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम पेल्विक गिर्डल या हिप गिर्डल कहते हैं। नाउ यू टेल मी व्हाट्स द अनदर नेम ऑफ हिप गिर्डल? Now the pectoral girdle consists of shoulder bones or shoulder girdles. जो हमारा pectoral girdle है उसमें या shoulder bones present होते हैं या हम उनको shoulder girdles भी बोल सकते हैं। जो shoulder bones, the shoulder bone is formed by the collarbone and the shoulder blade at the back. जो हमारी shoulder girdle है ये collarbone से बना होता है और हमारे shoulder blade से बना होता है जो कि एक girdle बनाते हैं। And I will tell you about hip girdle और pelvic girdle. जो हमारा hip girdle है, जो हमारा hip girdle है उसमें and the hip girdle is formed by the fusion of 3 bones. जो हमारा hip girdle है वो 3 bones की fusion से बना होता है, यानी कि जब 3 bones मिलती है उसी से हमारा hip girdle बनता है। जो हमारा hip girdle है ये 3 bones की fusion से बनता है, इसको हम pelvic girdle भी कहते हैं। This is the part we sit on. ये हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट होता है जिस पे हम बैठते हैं and the hip girdle and the hip bones form a bony ball like structure. जो hip girdle है ये एक bony ball like structure form करते हैं। Males and females have slightly different skeleton. जो males और females है उनमें different skeleton होता है। जो females है उनमें wider pelvis होता है, यानी कि females में pelvis wider होता है, जबकि babies birth लेते हैं वो वहीं से travel करते हैं। And the smallest bone in our body is found in the middle ear, which is called sternum, and it's only 2.8 millimeters long. And the longest bone in our body is called femur, and it's 36 to 48 centimeters long. Now you tell me that which is the smallest bone in our body? Where it's found and name and tell the length of that bone. It's found in the it's only 2.8 long. Now I will tell you about joints. Joints are the places in our body where the bones are connected. Joints ऐसे places होते हैं हमारी body में जहाँ bones join होते हैं, और जो joints है वो 2 groups में classify किए गए हैं, movable joints and immovable joints. मूवेबल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मूवमेंट अलो करते हैं, और जो मूवेबल जॉइंट होता है वो ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट्स के लिए जो कि हम बनाते हैं। और इमूवेबल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि मूवमेंट अलो नहीं करते हैं। नाउ आई विल टेल यू अबाउट स्टर्नम. स्टर्नम इज ओनली द वन बोन दैट्स प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ आवर चेस्ट. ये स्टर्नम एक सिंगल बोन होती है जो कि हमारे चेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट होती है, एंड इट्स द बोन विथ विच द रिब्स आर कनेक्टेड. ये ऐसी बोन है हमारी बॉडी में जिससे रिब्स कनेक्टेड होते हैं. नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. You tell me that what skeletal system? What skeleton? Now you tell me that what's ligament? How many parts are there of skeletal system? 2. Name the 2 parts of the skeletal system. Very nice. How many bones are present in our skull? 29. How many parts the skull is divided, and name the 2 parts of the skull. It's divided into 2 parts.
What's the another name of cranium? How many bones are present in our cranium? And which organ is protected by our rib cage? How many limbs are present in our body? How many bones are there in our upper arm? Which is the longest bone in our body? And what's the function of femur? How many bones are present in our rib cage? How many girdles are present in our body? 6. And what's the another name of hip girdle? I hope that you understood today's lecture. Thanks. Have a nice day.